Yes, are you ready or not? Yes, first ready for your attendance. One by one, unmute yourself and give me your attendance. Aruna Mathur. Present, ma'am. 16 September is the World Ozone Day. Next is 28th February. 28th February 28th February को National Science Day. 28th February National Science Day. Next is 31st May. 31st May 31st May को World No Tobacco Day सेलिब्रेट किया जाता है. 31st May World No Tobacco Day. Next is question number 7. 8th March. 8th March. And 8th March is a International Women Day. International Women Day. 8th March. International Women Day. Clear? Yes, next is 5th June. ये तो सबको पता होगा. 5th June. 5th June is a World Environment Day. World Environment Day. Number 9, October 5. 5th October. 5th October, World Teachers Day. 5th October, World Teachers Day. Number 10, March 15. 15th March. 15th March, World Consumer Rights Day. World Consumer Rights Day. Yes, done. Yes, come to our next question. Question number 11. 21st June. 21st June, International Yoga Day. International Yoga Day. 21st June. Number 12, 24th October. 24th October. 24th October. 24th October, United Nations Day. United Nations Day. Yes, done. Next, number 13. 7th April. 7th April. World Health Day.
World Health Day. Yes, next is number 14. 14th June. 14th June. 14th June is a flag day. Flag day. Yes, next number 15 is 22nd April. 22nd April. And 22nd April is a World Earth Day. World Earth Day. World Earth Day. यहाँ 15 नंबर मार्क कर लीजिए. Yes, done. Number 16 is 11th July. 11th July. And 11th July is World Population Day. You have to learn also these days. आपको learn भी करने हैं इन सबको date wise. 11th July World Population Day. सबको learn होने चाहिए ये. Yes, done. Number 17. 10th December. 10th December is a Human Rights Day. Is a Human Rights Day. Human Rights Day. Yes, done. And last number 18 is 6th August. 6th August. It is a Hiroshima Day. Hiroshima Day. Yes, done. If you want to take the PDF of this chapter, then you can. अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो आप इसकी PDF ले लीजिए. जिसने भी लेट क्लास ज्वाइन किया है. Yes. Next chapter is based on totally theory. ये theory based chapter है आपका. इसमें just आपको reading करनी है, fill कुछ भी नहीं करना, सिर्फ reading करनी है. रीडिंग वाले चैप्टर्स जो भी थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं इनको हम बाद में करेंगे. पहले सारे जो फिल करने वाले हैं, फिलअप्स वाले चैप्टर्स हैं, पहले करेंगे. क्लियर? देन our next chapter on page number 20. Page number 20. Page number 20.
India's struggle for freedom. India's struggle for freedom. इस चैप्टर पर आ जाइए. On page number 20. India, our motherland. India, our motherland. Yes, are you ready? Mention date on the top of the page. यहाँ पर भी आज की डेट आपको मेंशन करनी है 24 अगस्त 2020. Yes, ready? India's struggle for freedom. Choose the correct option. ये टोटली चैप्टर आपका एमसीक्यू बेस्ड है. इसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं. हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको मार्क करना है. क्लियर? यस. फर्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी वाज द एडिटर ऑफ. महात्मा गांधी किसके एडिटर थे? यंग इंडिया. करेक्ट आंसर इज यंग इंडिया. Option C is right. Mahatma Gandhi was the editor of Young India. Yes, done. Question number 2. Satyagraha was started by Gandhi ji in 1990 to protest against which event? जो गांधी जी ने सत्याग्रह इवेंट चलाया था वो किसके अगेंस्ट इन्होंने चलाया था? आपने एसएसटी में पढ़ा होगा. यस, करेक्ट आंसर इज रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था. रॉलेट एक्ट क्या था? इसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडियंस को बिना इन्फॉर्म किए, बिना कुछ उनपे केस लगाए, उनको क्या कर देते थे? जेल में डाल देते थे इंडियंस को, ब्रिटिशर्स. तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था. क्लियर? Satyagraha was started by Gandhi ji in 1990 to protest Rowlatt Act event. Yes, done. Number 3 is who was the first person to address to Mahatma Gandhi as a father of nation? महात्मा गांधी को सबसे पहले फादर ऑफ नेशन किसने बोला था? And the answer is Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose. Option B is right. Yes, come to our next question. Question number 4. Who propounded the theory of economic drain of India during British
imperialism, and the correct answer is Dada Bhai Ji. And the correct answer is Dada Bhai Nauroji. Option C is right. Yes, next is the Indian National Army formed by Subhash Chandra Bose was first recognized in. The Indian National Army formed by Subhash Chandra Bose was first recognized in. And the answer is Singapore. Singapore. Option C is right. Option C is right. Next is, who founded the Muslim League in India? Who founded the Muslim League in India? Option B is right. Nawab Salimullah. Nawab Salimullah. Yes, done. Yes, next question number 7. When was the direct telegraph line between India and England established? When was the direct telegraph line between India and England established? In 1870. Option B is right. In 1870. Yes, next question number 8. When was the Bill of India's independence passed by British Parliament? When was the Bill of India's independence passed by British Parliament? And the correct answer is July 1947. July 1947. July 1947. Option C is right. Next question number 9. Question number 9 is, when was Vande Mataram first sung at a session of Indian National Congress? When was Vande Mataram first sung at a session of Indian National Congress? In 1896. In 1896. In 1896. All you have marked all the questions? सबने मार्क कर लिए?
Yes, next is, when was the partition of Bengal annulled? Annulled means रद्द कर देना. When was the partition of Bengal annulled? And the answer is in 1911. 1911. Yes, done. Then check your answers again. Check your answers. And take a screenshot of this chapter. Screenshot ले लीजिए इसका. Yes, taken. Yes, then come to our next chapter. ये आपको खुद करना है chapter chemical world, science and technology. Science and technology chemical world, ये आपको खुद करना है. और आपको कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे. और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे. ठीक है. इसमें हर क्वेश्चन में आपको एक कोड दिया है. ठीक है. और आपको इस कोड को डीकोड करना है. डीकोड कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए आपको हिंट दिया हुआ है कि आपको ए बी सी डी इसको आपको रिवर्स करना है. रिवर्स कैसे करना है? मींस ए का मतलब तो क्या हो जाएगा? जेड. बी का मतलब वाई. इस तरीके से आपको ए बी सी डी रिवर्स ऑर्डर में बोलनी है. जेड का मतलब, अब आप पीछे से चलेंगे, जेड. जेड का मतलब ए, वाई का मतलब बी, एक्स का मतलब सी, डब्ल्यू का मतलब डी, वी का मतलब ई. आप यहाँ पे एक पेपर पे ए बी सी डी लिख लीजिए और फिर रिवर्स ऑर्डर में इसमें मार्क कर लीजिए. रिवर्स ऑर्डर में मार्क करने के बाद जो भी आपको कोड दिया है, मींस आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कोड है ARMX. ठीक है. योर कोड इज ARMX. अब बताइए ए का मतलब क्या है? अगर हम रिवर्स ऑर्डर में ABCD को बोलते हैं तो ए का मतलब Z है. तो ए की जगह पे आपने क्या लिखा? Z. और आर का मतलब, जब आप रिवर्स ऑर्डर में मेंशन करेंगे आपके पास सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे. क्लियर हो जाएगा ये. आर का मतलब आई और एम का मतलब एन और एक्स का मतलब सी. तो यहाँ पे जो नाम आएगा ये किसका होगा? ये एक केमिकल नेम है. ठीक है. ये एक केमिकल नेम है. और यहाँ पे जितने भी नाम आएंगे वो सारे केमिकल नेम्स होंगे. इज इट क्लियर? समझ में आया किस तरीके से करना है आपको?
कोड दिया है, कोड को डिकोड करके और आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में ABCD लिख लीजिए। यस, क्लियर हुआ आप लोगों को ये किस तरीके से करना है? इट्स योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क होगा और आपको खुद करना है। राइट ABCD अप टू Z तक लिखना है आपको। ABCD को लिख लीजिए, A to Z लिखिए अपनी कॉपी में। देखो एक बार यहाँ देखना किस तरीके से आपको लिखना है। इज इट विजिबल? दिखाई दे रहा है आपको? इज इट विजिबल? हमने यहाँ पे क्या किया? A से लेकर Z तक हमने यहाँ पे लिख लिया। अब रिवर्स ऑर्डर में मीन्स यहाँ नीचे से फिर ABCD लिखिए और Z के ऊपर छोटा सा हमने A मार्क कर दिया, फिर Y के ऊपर हमने B मार्क किया, X के ऊपर हमने C मार्क किया, देन D, E, F, G, H, I, J, K, L। इस तरीके से हमने रिवर्स ऑर्डर में भी ABCD लिख ली। अब ये लिखने के बाद तो डिकोड कर सकते हैं आराम से, जो भी आपको कोड दिया हुआ है। बताइए मुझे, राइट यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए पहले मुझे किस तरीके से करना है इसको। राइट समथिंग, यस और नो? यस, चेरी, इट इज क्लियर? बताइए मुझे क्लियर हुआ किस तरीके से करना है आपको? क्लियर है? ओके, देन राइट A to Z इन योर कॉपी फास्ट। जल्दी से अपनी कॉपी में A to Z लिखिए और उसी को रिवर्स ऑर्डर में भी, जैसे अभी समझाया था ऐसे रिवर्स ऑर्डर में भी करना है आपको। ठीक है, किस तरीके से दोबारा देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। पहले आपने सीक्वेंस में लिख लिया ABCD, A to Z लिख लिया आपने यहाँ पर। अब रिवर्स ऑर्डर में मीन्स जहां आपने Z लिखा है Z के ऊपर A लिखिए, देन Y के ऊपर B लिख लीजिए, C D E F। इस तरीके से आप कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बताते जाइए। आप लोग भी बताएंगे इसको डिकोड करके। यूज योर ब्रेन। जितने क्वेश्चन आपके अभी हो जाते हैं इनको अभी करिएगा, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क है। क्लियर? यस, राइट फास्ट, जल्दी से लिखिए।
कॉपी में आपको नहीं करना है, इसके जो फिलअप से नहीं फिल करना है, बस कॉपी में आप इसको एक बार A to Z लिखेंगे, क्योंकि बिना इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखे आप डिकोड नहीं कर पाएंगे। एक बार आपको लिखना ही होगा इसको, ठीक है। बस कॉपी में आपको A to Z लिखना है, दोनों तरीके से लिखना है आपको, रिवर्स ऑर्डर में भी लिखना है। यस रिटन, लिख लिया सबने? यस रिटन और नॉट, बताइए मुझे। आर यू राइटिंग? चलिए, फर्स्ट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अब सेकंड आप बताएंगे मुझे। योर कोड इज UOFLIRMV। अगर आपने A to Z लिख लिया है तो बताइए, U का मतलब बताइए रिवर्स ऑर्डर में। U किसको डिनोट कर रहा है? यस, गुड। U किसको डिनोट कर रहा है? F को। तो U की जगह आप क्या लिखेंगे? F। और O किसको डिनोट कर रहा है? L को। देन put L after F। नेक्स्ट इज F। F किसको डिनोट कर रहा है? U को। तो F की जगह पे आप लिखेंगे U। और L डिनोट किसको कर रहा है? O को। तो L की जगह पर हम लिखेंगे O। I डिनोट टू R। और R डिनोट कर रहा है I को। तो R की जगह पे आप लिखेंगे I। एंड नेक्स्ट इज M। M किसको डिनोट कर रहा है? N को। M की जगह पे हम क्या लिखेंगे? N। और V की जगह पे क्या लिखोगे आप? E। तो बताइए कौन सा केमिकल सब्सटेंस बना? बताइए मुझे, ज्वाइन करके बताइए, ज्वाइन करके बताइए क्या नाम बना, कौन सा केमिकल सब्सटेंस बना? फ्लोरीन। कौन सा केमिकल सब्सटेंस बना? फ्लोरीन। आगे समझ में? इज इट क्लियर? हम कैसे करेंगे? अब ये बुक एक्सरसाइज आपको होम में करनी है। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से सारे कोड को डिकोड करिए और यहाँ पे जो भी केमिकल सब्सटेंस बनता है उसका नाम लिखिए। इज इट क्लियर? डू दिस वर्क ओनली इन योर बुक, नॉट इन कॉपी। It's your homework. Is it clear? ये समझ में आ गया आप लोगों को? Speak yes or no? Okay, कर लेंगे इस क्वेश्चन को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, that's good. Okay, ma'am. Okay, ma'am. इसको होमवर्क, इस पे होमवर्क मेंशन कर लीजिए HW, और जो भी हमने क्लास में किए थे उस पे मेंशन करिए क्लास वर्क CW। Okay, ma'am. Okay, ma'am.
From the camera, can I show my book work? Yes. Can I leave? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then complete Yes, ma'am. your. Okay, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank Okay, you, ma'am. ma'am. And take break of Thank 5 you, ma'am. minutes. Have a nice मैंने day. यहाँ पेज नंबर कर रखा है. Good day, students. Good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. मैम भी गई. हाँ गई थी ना. मैम को कोई फर्क ही नहीं पड़ा. डियाना ने लीव कर दी क्लास. देखते हैं कौन है क्लास के अंदर. और याशिका क्या हालचाल? Hello, Jatin. कौन बोला? अंशुल? क्या है अंशरी?